Hi everyone and welcome back. So as you all know that we have already completed a very important chapter from your 12th standard, that is reproduction in organisms. तो आज हम इसी chapter से PYQ solve करने वाले हैं right from the year 2021 up to the year 2010. सारे MCQs one by one we are going to solve, and as all of you know that chapter has been completed. Concept wise we have already completed each and every point from NCERT, each and every topic from NCERT. So now we are just going to solve the PYQs, or for each PYQ you will be getting 10 seconds. और सभी को यहाँ पर participation अपना show करना है. Everyone has to participate. Even if you are not sure about the answer, make sure that you are at least responding. Like अगर आप नहीं आंसर कर पा रहे हो, so let me know that you are confused or whatever. But not do that कि आप चुपचाप क्लास में बैठे रहो और बिल्कुल भी response ना करो. That I don't want from any of you. Okay, so I want maximum response. And before we start with the questions, let me see who all are present in the class. Quickly raise your hands or give me a thumbs up quickly. Let me see who all are here in the class already. जल्दी से बच्चों मुझे जल्दी से thumbs up या फिर एक hand raise send कर दीजिए so that I can see who all are here in the class right now and ready for this super amazing session of today, that is reproduction in organisms के PYQs हम यहाँ पर जल्दी से solve करने वाले हैं. So be quick बच्चों. Let us see who all are here in the class. All right. Okay, so as I can see mostly kids are here ready for PYQs. कुछ बच्चे अभी तक response नहीं दे रहे. जल्दी से be quick. जब तक मुझे सबका response नहीं आता क्लास में तब तक I won't begin. I want 100% participation over here. मुझे एक बच्चा यहाँ पर, ऐसा नहीं कि वही 4-5 बच्चे बार बार आंसर करे जा रहे हैं. I want each and every child over here to be answering every question. कुछ बच्चे बीच में कुछ questions आंसर करके गायब हो जाते हैं. Only a few of them are consistent throughout. सिर्फ कुछ ही बच्चे throughout consistency maintain रखते हैं. So I want all of you to be that consistent. And as I can see now, okay, so everyone is here in the class. So let's begin with the first question from this chapter that is in front of your screen from the year 2019. 2019 का question हमारे सामने है. And the question is, in some plants the female gamete develops into embryo without fertilization. This phenomena is called as. क्या कहते हैं हम इस phenomena को? क्या पूछा है आपसे कि कुछ plants के अंदर जो female gamete होता है वो एक embryo में convert हो जाता है. It converts into an embryo without fertilization. इस phenomena को हमने क्या नाम दिया था? We have actually studied this. सीधे एक liner है ये. This is just a definition, right? And definition किसकी है? Parthenogenesis, autogamy, parthenocarpy या फिर syngamy. What do you think? किसकी definition है ये out of these options that you have to tell? अब direct definition based question पूछा जा रहा है. So I don't think कि किसी को भी कोई confusion होना चाहिए in this particular question because we have already studied this. We have already completed this portion. Okay, so as I can see, yes, mostly the answer that I have received till now is correct. Yes, hello, I'm doing great बेटा. अभी हम PYQ series शुरू कर चुके हैं. We have started question solving, so please participate and answer. I'm doing great and I expect the same for all of you. I'm expecting आप सभी you all are doing well, you all are doing great and you all are studying constantly, consistently. ओके हाँ जी बिल्कुल मुझे आपका आंसर दिख रहा है. ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जिसका कि आंसर मैं नहीं रजिस्टर करती हूँ. आई एक्चुअली रजिस्टर एवरीवनस रिस्पॉन्स ओवर हियर दैट कौन बच्चा किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, बीच में कौन गायब हो जाता है. एवरीथिंग आई गेट टू नो. ओके सो डोंट वरी अबाउट दैट. राइट सो जैसा कि एवरीवन नोज कि ये जो डेफिनेशन है किसकी डेफिनेशन है? जब किसी भी प्लांट के अंदर, कुछ प्लांट्स के अंदर नेचुरली ये फिनोमेना आकर होता है कि फीमेल गैमेट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन. और इस फिनोमेना को हमने नाम दिया था पार्थेनोजेनेसिस. वी कॉल इट एज पार्थेनोजेनेसिस. वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम पार्थेनोकार्पी की बात करें, अगर कोई इससे कंफ्यूज हो रहा हो तो पार्थेनोकार्पी क्या होता है? व्हाट इज पार्थेनोकार्पी? Yes, it is the formation of seedless fruits. जब seedless fruits बन जाते हैं तो उसे हम कहते हैं parthenocarpy. So now the next question in front of you from the year 2018 is here. और question में पूछा है which of the following flowers
ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, इनमें से कौन सा सिर्फ जिंदगी में एक बार फ्लावरिंग होती है? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल इज दिस, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है जो कि हमने पहले भी एक चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इस चैप्टर में फिर से ये रिपीट हुआ है। एंड द ऑप्शंस आर बैम्बू स्पीशीज, जैक फ्रूट, मैंगो या फिर पपाया, सिर्फ एक बार इसमें फ्लावरिंग होती है। दैट इज अ वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल एंड एज आई कैन सी यस, सभी को ये बात याद है, वेरी गुड। सो एक भी मिक्स्ड आंसर इसमें नहीं आया। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे इजी क्वेश्चंस के लिए भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर गलत गलत आंसर्स देते हैं, बट इसके लिए एज आई कैन सी सब ने अभी तक बिल्कुल सही आंसर दिया है। ओके, सो डेफिनेटली करेक्ट, यू ऑल आर डेफिनेटली करेक्ट कि यहाँ पर एक ही कॉमन आंसर आ रहा है। वी ऑल नो दैट बैम्बू स्पीसीज इज द वन, ये मोनोकार्पिक होती है बैम्बू स्पीसीज एंड अप्रोक्सीमेटली कभी कभी इसके अंदर 100 to 500 ईयर्स तक भी ये इसकी लाइफ स्पैन हो सकती है और इसमें फ्लावरिंग सिर्फ लाइफ में एक ही बार होती है। सो बैम्बू स्पीसीज इज डेफिनेटली राइट आंसर ओवर हियर बिकॉज दिस इज वेरी पॉपुलर, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ये बैम्बू का। सो दैट्स वाई ए हैज टू बी आवर आंसर। तो ए को टिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगर ऐसे क्वेश्चन आपके टाइम पर आ गए नीट में, सो दे आर एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू, ऐसे ही आप लोग मार्क्स ग्रैब करते जाओगे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ऑफसेट्स किससे प्रोड्यूस होते हैं? मियोटिक डिवीजन से, माइटोटिक डिवीजन से, पार्थेनोकार्पी से या फिर पार्थेनोजेनेसिस से? नाउ दिस क्वेश्चन अबाउट offsets is in front of you from the year 2018 and let's see who remembers this thing, what all you have to answer for this particular question. All right, ठीक है, so yes definitely you will get 10 seconds, आपको 10 seconds हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे बेटा। I will wait for you। जब भी आपको ऐसा लगे when I am about to discuss the question और आप अगर चाहते हो कि थोड़ा और टाइम आपको सोचने के लिए मिले, so you can definitely tell me in the chat. I will wait for you for a little longer also. And as I can see here, आंसर्स जो यहाँ पर अभी तक रिसीव हुए हैं, they are definitely most of the answers are correct only. कुछ एक बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं यहाँ पर, but you have to remember offset कैसे प्रोड्यूस होता है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑल राइट, चलिए। सो एज वी कैन सी हियर दैट ऑफसेट के बारे में मोस्टली बच्चों को बात याद है कि ऑफसेट प्लांट का वो पार्ट होता है जो कि माइटोसिस के थ्रू होता है। इट इज फॉर्म बाय माइटोटिक डिवीजन। द ऑफसेट्स दे आर एक्चुअली फॉर्म बाय माइटोटिक डिवीजन एंड एज आई कैन सी हियर बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। बाकी अगर हम बात करें आपके पार्थेनोकार्पी की, सो पार्थेनोकार्पी अभी हमने डिस्कस किया था कि जब फ्रूट फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन और सीडलेस फ्रूट्स होते हैं उसको हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस में एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। एंड देन मियोसिस के थ्रू तो ऑफसेट फॉर्मेशन नहीं हो पाता है बिकॉज दिस इज अ प्लांट पार्ट, सो इट इज एक्चुअली माइटोटिक डिवीजन व्हिच विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ऑफसेट। सो दैट्स व्हाई बी जितने भी बच्चों ने कहा है वेरी गुड, दैट इज डेफिनेटली करेक्ट। देन अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 2016 से। अब ये जो चैप्टर है इसका लेंथ वाइज दिस चैप्टर इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन अगर इसका वेटेज देखा जाए तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 से 2 क्वेश्चंस। और जब 1 से 2 क्वेश्चंस आपको इतने छोटे से चैप्टर से मिल रहा है एंड चैप्टर इज आल्सो क्वाइट इजी, सो दैट बिकम्स अ वेरी गुड डील फॉर यू। आप उसके थ्रू बहुत ही ज्यादा स्कोर अपना बूस्ट कर सकते हैं, दैट विल आल्सो बूस्ट योर रैंक्स। सो दैट्स व्हाई इस टाइप के चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब 2016 का क्वेश्चन है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। अब आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट यू हैव टू टेल एंड द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एज क्लोन, या फिर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज ज़ूस्पोर्स, or in potato, banana and ginger the plantlets arise from the internodes present in the modified stem, या फिर water hyacinth growing in the standing water drains oxygen from water that leads to death of the fishes। और इसमें से आपको not correct statement बताना है out of the following statements and I hope you all should be able to answer this because again question में बिल्कुल भी twist turn
any type of trick is not there. So direct question again, and you can see कि mostly जो हमारे questions आते हैं नीट में, they are definitely direct. अगर आपको पढ़ा हुआ है, if it is there in your memory, you will be able to answer the question within seconds. Okay, so इस question के लिए क्या answers आप लोग दे रहे हैं? Let me see. All right. Okay. अच्छा, सो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए भी मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं. हाँ जी बेटा आरव, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है लास्ट क्लास में ही, एंड नेक्स्ट चैप्टर तो हम इसके बाद ही शुरू करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर की हमेशा बहुत ज़्यादा चिंता रहती है बच्चों को, है ना. सो नेक्स्ट चैप्टर एक बार ये हो जाए, देन वी विल बी बिगिनिंग. सो अभी तो PYQ सॉल्व करो. रिवीजन करके आए हो सारे बच्चे? येस और नो? रिवीजन यू हैव डन, बिकॉज रिसेंटली ही हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया था. सो आई होप यू ऑल हैव रिवाइज्ड इट वेल. ओके, चलिए. सो एज वी कैन सी हियर कि एक आंसर है जो कि मोस्टली बच्चों ने दिया है, बाकी और भी आंसर्स आए हैं. सो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने जो यहाँ पर आंसर दिया है दैट इज सी आंसर मेजॉरिटी में है. बाकी कुछ बच्चों ने A, B, D दूसरे आंसर्स भी दे दिए हैं. सो अगर हम सी आंसर को देखें, सो व्हाट इज सी में क्या दिया हुआ है? इन पोटैटो, बनाना एंड जिंजर, the plantlets arise from the internodes present in the modified stem. आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन नहीं है. और यहाँ क्या दिया हुआ है बच्चों? इन पोटैटो, बनाना and ginger, the plantlets arise from internodes. This is what they have given. And is this correct? क्या सभी बच्चे इससे अग्री कर सकते हैं कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्या? Is this particular statement correct? Definitely no. Yes, as we all know कि हमारा जो पोटैटो है, पोटैटो के अंदर तो देर इज ट्यूबर, राइट. और हमारे बनाना, जिंजर, इनके अंदर देर इज प्रेजेंस ऑफ दोज स्पेसिफिक थिंग्स दैट वी हैड स्टडीड अबाउट, विच वी कॉल एज राइजोम्स. किसी को याद है ये बातें? Yes, definitely, as I can receive here. बिल्कुल ऋषि, आपने बिल्कुल सही कहा है. Rhizomes we have studied in ginger. Then tuber होता है, eyes of potato is there. So ये internodes के through they are not actually propagating. They are not arising. So that is why हम कहेंगे कि ये जो तीनों plants हैं इनके अंदर vegetative propagation होता है, उनके stem के through होता है, लेकिन not through the internodes. That is through tuber, जैसे कि potato में eyes होती है, then इनके अंदर rhizomes के through होता है. That is why ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा. बाकी स्टेटमेंट्स आप देखो, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से और ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होते हैं वो क्लोन्स होते हैं. यस, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. देन माइक्रोस्कोपिक मोटाइल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जो मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम जूस्पोर्स कहते हैं कि नहीं? डेफिनेटली एनसीईआरटी की लाइन है ये तो सीधी सी. देन वाटर हाइसिंथ, ग्रोइंग इन स्टैंडिंग वाटर, क्या करता है वो? सारे ऑक्सीजन को ड्रेन कर देता है, इस वजह से वहां पर डेथ हो जाती है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की. ये भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन सी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर. सो देयर वाज नो चांस ऑफ गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दिस क्वेश्चन. सो सी आंसर जितने भी बच्चों ने दिया है दैट इज डेफिनेटली करेक्ट. अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 2016 का क्वेश्चन आपके सामने. विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशन? वेरिएशन किसकी वजह से आ सकता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस, sexual reproduction or nucellular polyembryony. Now I hope everyone knows this thing कि genetic recombinations की जब बात होती है, that means variation की जब बात होती है, तो वो किस reproduction की वजह से आता है? Which type of reproduction leads to variations? Variations क्यों आते हैं? I hope everyone remembers. Okay. Yes, definitely I can see your response बेटा. I have already told you, आपका रिस्पॉन्स डेफिनेटली दिख रहा है. सही है गलत है वो हम डिस्कशन के टाइम पर डिस्कस करेंगे. यू हैव टू सी वेदर योर रिस्पॉन्स इज राइट और रॉन्ग. ओके, एक एक बच्चे का मैं यहाँ पर सही है या फिर गलत है, आई वॉन्ट टेल. जब हम डिस्कशन करेंगे तब आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि आपका जो आंसर है वो सही है या फिर गलत है. ओके, ऑल राइट.
So mostly I have received the response already, and as we already know कि जब genetic recombination की बात होती है, genetic recombinations क्यों हो पाते हैं? जब दो अलग अलग gametes fuse होते हैं, when there is fusion of gametes, one from the paternal side, one from the maternal side, when those gametes will fuse, so there will be recombinations, नए genetic combinations बनेंगे कब? जब sexual reproduction होगा. Fusion of gametes कब होता है? Sexual reproduction में. In sexual reproduction, one gamete comes from the father side, one gamete from mother side, और जब वो fuse होते हैं, so there are new combinations which are formed, variations आ जाते हैं, और ये जो variations होते हैं वो actual में sexual reproduction की वजह से ही होते हैं. So that's why C has to be our answer here. C हमारा correct answer है, तो C को हम mark करते हैं और बढ़ जाते हैं next question पे आगे. And the next question in front of us again 2016 question है, match the column 1 with column 2 and select the correct option using the codes given below. तो आपको दो कॉलम्स दिए हैं 1 and 2 एंड आपको यहाँ से अपना आंसर सिलेक्ट करना है. सो कॉलम 1 में दे हैव गिवन यू पिस्टल्स फ्यूज टुगेदर, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, hyphae of higher, ascomycetes, unisexual female flower, and here they have given you gametogenesis, pistillate, syncarpus, dikaryotic, and these are your options. So simply आपको बस मैच करना है and this is quite direct answer only, मतलब direct question है ये, so you have to answer it in that way only. And let's see if anyone has given their response already. अभी तक किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया है बच्चों. प्लीज बी क्विक, यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड एज वेल. आपको अपना पेस भी मेंटेन करके रखना है बिकॉज यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस दिस फास्ट ओनली इन योर एग्जाम्स. सो एज आई कैन सी, ऑल राइट, यस, प्लीज बी क्विक. यू कैन टेक 5 more seconds, 5 और सेकेंड्स है आपके पास एंड यू हैव टू मैच. देखो इसमें बिल्कुल डायरेक्ट है, इसमें बिल्कुल भी कोई ट्रिक नहीं है. पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, क्या टर्म यूज करते हैं हम इसके लिए, दैट यू हैव टू टेल. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यू हैव टू सिलेक्ट. हाइफे ऑफ हायर एस्कोमाइसेटिस कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, यू हैव टू जस्ट मैच इट विथ दैट. सिंपली टर्मिनोलॉजी मैच करनी है आपको और कुछ भी इसके अंदर नहीं है. सो इफ वी टॉक अबाउट द पिस्टल्स फ्यूज टुगेदर, सो जो पिस्टल्स साथ में फ्यूज होते हैं उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं. द टर्म दैट वी यूज फॉर सच पिस्टल्स विच फ्यूज टुगेदर इज व्हाट वी कॉल एज सिनकार्पस, राइट. पिस्टल्स जो कि साथ में फ्यूज होती है उसे हम कहते हैं सिनकार्पस. सो ए को हम मैच कर देते हैं 3 के साथ एंड लेट अस सी, हमारे एक ही ऑप्शन में ये मैचिंग है, करेक्ट. देन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की अगर हम बात करते हैं, सो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स वेयर आर इज दैट फाउंड. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, पिस्टिलेट, डाइकैरियोटिक, नाम से ही समझ में आ रहा है. गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, सो दैट इज व्हाई हियर वी विल राइट बी. देन आफ्टर दैट हाइफे ऑफ हायर एस्कोमाइसिटिस, अगर हम उसकी बात करें सो डाइकैरियोटिक स्टेज आती है उसमें. दिस वी हैड स्टडी ड्यूरिंग फंगस, डाइकैरियोटिक स्टेज, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर हम सी लिखेंगे. एंड देन यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है, अगर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है सो ऑब्वियसली इट हैज टू बी पिस्टिलेट. उसे हम क्या कहेंगे, पिस्टिलेट कहेंगे. सो डायरेक्ट मैचिंग थी ये, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं है. सो दैट इज व्हाई डी हैज टू बी द राइट आंसर एंड whoever has answered this D, very good. Yes, your answer is definitely correct. So D has to be the right answer here. So D को हम मार्क करते हैं और बढ़ जाते हैं आगे. डायरेक्ट क्वेश्चन था बिल्कुल. अब अगला क्वेश्चन हमारा 2015 से. फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स किसके अंदर होते हैं, चाइना रोज में, अनियन में, पी या फिर क्यूकम्बर. विच ऑफ दीज हैज गॉट यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दैट यू हैव टू टेल हियर. And if we talk about a unisexual flower, so I hope you all know this thing कि unisexual flowers किसके अंदर होते हैं, मेल और फीमेल सेपरेट सेक्स ऑर्गन्स किन फ्लावर्स के अंदर मिलते हैं. और ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर गोइंग टू बी देयर, व्हाट कैन वी कॉल देम, व्हाट विल बी कॉल सच प्लांट्स जिनमें यूनिसेक्सुअल प्लांट्स रहेंगे, फ्लावर्स रहेंगे. यस, टेल मी, व्हाट डू वी कॉल इट. ओके, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है कि सेपरेट फ्लावर्स पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. सेपरेट प्लांट के ऊपर मेल या फिर फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट, दैट इज व्हाट इट मीन्स, राइट. ओके,
All right, and as we can see here, unisexual flowers, very good. Unisexual flowers, definitely we all know this thing कि हमारे cucumber में we find unisexual flower. बाकी में bisexual flowers होते हैं. Bisexual flower का मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों reproductive organs एक ही flower के ऊपर रहने वाले हैं, जबकि इसके अंदर unisexual flower में the male and female reproductive organs will be present on separate flowers. मतलब एक separate male flower, separate female flower is going to be there. Okay, so that's why here the answer has to be D, that is cucumber. So cucumber जितने भी बच्चों ने बोला यहाँ पर, that is very correct. Then next question हमारा 2015 से फिर से, और question में पूछा है which of the following pairs is not correctly matched. इनमें से कौन सा pair correctly matched नहीं है. Mode of reproduction is given here and the examples are here. Binary fission, conidia, offset rhizome, sargassum, penicillium, water hyacinth and banana. These are the examples. Here mode of reproduction and here examples you have to select कि इसमें से correctly matched क्या है. That is what the question is asking you. And let's see, not correctly matched pair क्या है. You have to tell इनमें से गलत क्या है. Not correctly matched. Okay. So let's see what all you have to answer for this question. फिर से एक direct question है. अगर आपको याद है examples, you will be able to answer this quickly and आप जल्दी से बता सकते हो कि किसमें कैसा mode of reproduction होता है. Because the question is quite direct. बिल्कुल direct question है. All right. So as we can see here, yes, definitely true. बिल्कुल सही. हाँ जी, आपका आंसर एकदम करेक्ट है. We will be discussing it soon. हम डिस्कस करते हैं इसको जल्द ही. आपको यहाँ पर बताना है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और उसका एग्जाम्पल के लिए कौन करेक्ट नहीं है, और बहुत ही आसान है ये बताना, वेरी इजी और बिल्कुल लाइटनिंग फास्ट स्पीड से यहाँ पर आंसर्स आ चुके हैं. बहुत ही जल्दी यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं, बिकॉज एवरीवन नोज दैट ये जो सार्गाज्म है, सार्गाज्म क्या है? दिस इज अ ब्राउन एल्गी. ब्राउन एल्गी के अंदर क्या बाइनरी फिजन होता है क्या? सार्गाज्म में बाइनरी फिजन इज देयर? नो, नॉट एट ऑल. सो दैट्स व्हाई ये तो हमारा बिल्कुल गलत है. बाकी सब देखो आप तो कोनिडिया, पेनिसिलियम में यस, ऑफसेट, वाटर हाइसिंथ में ऑब्वियसली, राइजोम इन बनाना अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था. सो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन बाइनरी फिजन इन सार्गाज्म इज नॉट करेक्ट. एंड बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, बिकॉज वी ऑल नो कि अगर हम बात करते हैं आपके ब्राउन एल्गी की, तो उसमें बाइनरी फिजन नहीं होगा. स्पोर्स के थ्रू हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर देयर कैन इवन बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपकी आइसोगैमी हो सकती है, एनाइसोगैमी, बट नॉट बाइनरी फिजन. सो दैट्स व्हाई ए हैज टू बी द इनकरेक्ट वन. ए जितने भी बच्चों ने कहा है बिल्कुल सही. द नेक्स्ट क्वेश्चन है मियोसिस टेक्स प्लेस इन. इनमें से किसके अंदर मियोसिस होता है? दैट यू हैव टू टेल. एंड द एग्जांपल्स आर जेम्यूल, देन मेगास्पोर, मियोसाइट या फिर कॉनिडिया. These are the options in front of you and you have to tell that meiosis takes place in which of the following. ठीक है, meiosis किसके अंदर होता है ये आपको बताना है. जेम्यूल के अंदर, मेगास्पोर के अंदर, मियोसाइट या फिर कोनिडिया. Which of these undergoes meiosis? That you have to tell here. Okay, and let us see what all you have to answer. Okay. अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट होते हैं उसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन्स हो जाती है. ऐसा क्यों है? यहाँ पर सीधे सीधे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से मियोसिस किसके अंदर होता है, जेम्यूल में, मेगास्पोर में, मियोसाइट या फिर कोनिडिया में. दिस इज अ वेरी डायरेक्ट एंड इजी क्वेश्चन. मियोसिस जिस भी सेल के अंदर होगा, एनी सेल अंडरगोइंग मियोसिस, क्या उसे हम मियोसाइट नहीं कहेंगे? वोंट बी कॉल इट एज मियोसाइट. जब सीधा सा आंसर यहाँ पर दे रखा है तो फिर क्यों कंफ्यूज होना है किसी भी दूसरे सेल के बीच में? मियोसिस जिस सेल में होगा उसे हम मियोसाइट कहेंगे. दैट इज वेरी ऑब्वियस. सो सी हैज टू बी द आंसर हियर. इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकती है? सो सी वी विल मार्क. एंड मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2013 अगेन. क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है उससे क्या जनरेट होता है? दैट यू हैव टू टेल एंड द ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू. दैट इज न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशन, या फिर लार्ज बायोमास,
लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड्स या फिर प्रोलॉन्ग्ड डोरमेंसी, दीज आर द स्टेटमेंट्स। एंड आपको बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के से जनरली क्या जनरेट होता है। अभी कुछ देर पहले भी हमने बात की थी एंड आई होप आप सभी को पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से व्हाट वुड बी द आउटकम। दीज आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू टेल द आउटकम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड लेट अस सी what all you have to answer। इसमें आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई भी बच्चा इसका गलत आंसर करे बिकॉज राइट नाउ हमने डिस्कशन किया हुआ है एक क्वेश्चन में एंड एज आई कैन सी नाउ दैट मोस्टली जो आंसर्स आ रहे हैं डेफिनेटली दे आर करेक्ट। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम 5 सेकेंड के अंदर अंदर ही मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आउटकम यूजुअली जनरेट्स, व्हाट डज दैट जनरेट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर है सो अभी हमने डिस्कस किया था कि नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसकी वजह से वेरिएशंस आकर। So if we talk about variation, so we have to remember our sexual reproduction. Because of sexual reproduction only, there will be new genetic combinations which will lead to variation, and that is why A has to be the correct statement here. A हमारा बिल्कुल सही statement है, so we will mark A and then we will move towards the next question. So अगला question हमारे सामने है which one of the following is correctly matched? और ये question है आपका 2012 का, 2012 का question हमारे सामने है which one of the following is correctly matched। अब आपको correctly match बताना है and the options in front of you are onion, bulb, ginger, sucker, Chlamydomonas conidea या फिर yeast with zoospores। These are the options in front of you, okay? And you have to tell the correctly matched one। करेक्टली मैच कौन है इनमें से, दैट इज वॉट यू हैव टू टेल हियर। 2012 का क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा एंड लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर। किन बच्चों ने ऑलरेडी आंसर कर दिया है? ओके, सो बहुत सारे रिस्पॉन्स ऑलरेडी आ चुके हैं इस क्वेश्चन के लिए, इसका मतलब है कि आपको ये बात याद है अच्छी तरह से। सो यू हैव टू टेल द करेक्टली मैच पेयर आउट ऑफ दीज एंड आई एम वेटिंग फॉर सम मोर रिस्पॉन्सेज, देन वी विल मार्क द आंसर। ओके, yes, definitely, yes, your answer is correct beta। चलिए, so now if they are asking you कि इनमें से करेक्टली मैच पेयर कौन है, so हम सभी को पता है, बचपन से सबको पता होता है कि यहाँ पर बात हो रही है अगर yes definitely if they are talking about onion, so जो onion है हमारा उसको हम मैच करेंगे बल्ब के साथ क्योंकि onion के अंदर definitely there is bulb, that is definitely correct। ginger के आगे आपको शक्कर दिया हुआ है, we just studied कि rhizome होता है, right? then apart from that Chlamydomonas के सामने conidia and yeast के सामने zoospores दिया हुआ है, so that is definitely not correct here। so that is why coming towards the next question from the year 2011 और question में पूछा है आपसे which one of the following pairs is wrongly matched while the remaining are correct। अब आपको इनकरेक्ट बताना है। हमेशा जब क्वेश्चन में करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, रॉन्ग, राइट जो भी लिखा हो उस पर आपको ज्यादा एम्फेसाइज करना है। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड while reading these kind of questions, okay? so now they are asking you wrongly matched while the remaining 3 are correct। wrongly matched pair आपको यहाँ से find out करना है। so let's see what all you have to answer for this particular question। wrong इनमें से कौन है? which of these is actually wrong? yes, okay, all right, मिक्स्ड आंसर्स एक्चुअली इसके लिए आ रहे हैं। जब भी मैं सोचती हूँ कि इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सो एक्चुअली आई रिसीव मिक्स्ड आंसर्स फॉर दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल ऑब्वियस होते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं, आपको रॉन्गली मैच बताना है। ओके, ऑलराइट, यस, यू कैन टेक 5 more seconds। अगर ऐसा कभी आपको लगता है कि आपको और सोचना है, आपको और सोचकर आंसर देना है, सो डेफिनेटली आई विल गिव यू दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। ऑल राइट, चलिए, सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस एज आई हैव रिसीव मोस्टली आंसर्स यहाँ पर आ चुके हैं। Most of the kids have already answered here. So now let us discuss this कि इसमें से wrongly matched कौन सा है? Penicillium conidia, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने मैच किया था and we all know कि Penicillium में conidia is there. Sometime before also we matched this. Then after that water hyacinth is matched with runner. Runners के examples आप सभी को याद होने चाहिए। Runners के examples we all know that is दूब grass, oxalis, ये इसके examples होंगे। So यहाँ पर runner के example में आपको water hyacinth दिया है which is not correct। water hyacinth में offsets होते हैं,
सो ये हमारा यहाँ पर गलत है बिल्कुल। वाटर हाइसिंथ हैज गॉट ऑफसेट्स, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है रनर, सो दैट्स वाई बी हमारा रॉन्ग है। बाकी ब्रायोफाइलम तो फेमस है लीफ बर्ड्स के लिए। देन एगेव ऑल्सो इट हैज बल्बिस, सो दैट्स वाई बी इज द रॉन्गली मैच्ड पेयर हियर। बाकी सारे हमारे बिल्कुल सही है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर, क्या होते हैं आईज ऑफ पोटैटो? अभी कुछ देर पहले ये भी डिस्कस किया था हमने, 2011 का क्वेश्चन है। क्या क्या दिया हुआ है? रूट बर्ड्स होती है, फ्लावर बर्ड्स होते हैं, शूट बर्ड्स होते हैं, या फिर एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं जो आईज ऑफ पोटैटो है। व्हाट काइंड ऑफ बर्ड्स दे आर, एंड द ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, फिर से एक सीधा सा क्वेश्चन है आपके सामने, दैट यू हैव टू टेल हियर। ओके, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही। मोस्टली जो आंसर्स आए बिल्कुल सही है आपका, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी हमने डिस्कस किया था कि पोटैटो के अंदर क्या होता है, देयर हैपेंस टू बी स्टेम ट्यूबर होता है। और यहाँ पर जब बात चल रही है आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर की, सो आईज जो होती है पोटैटो ट्यूबर की, दे आर एक्चुअली एक्सिलरी बर्ड्स, वो होते हैं एक्सिलरी बर्ड्स, नॉट रूट बर्ड, शूट बर्ड, नॉट फ्लावर बर्ड्स, बट दे आर एक्चुअली एक्सिलरी बर्ड्स। सो एक्सिलरी बर्ड्स जितने भी बच्चों ने कहा है, एज आई कुड सी हियर, मोस्टली द किड्स हैड एक्चुअली आंसर्ड एक्सिलरी बर्ड्स ओनली। और आपको सिंपली ABCD ही लिखना होता है, इफ अगर आप पूरा नहीं लिख रहे हो तो भी चलेगा। सो मोस्टली यहाँ पर बच्चों ने सही आंसर बिल्कुल दिया है। सो वी विल मार्क इट एंड मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रॉम द ईयर 2010 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोशियस? इनमें से मोनोशियस कौन है? दैट यू हैव टू टेल। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोशियस? मार्केंशिया, साइकस, पाइनस या फिर डेट पाम? These are the options in front of you and you have to tell the monoecious one. Which of the following is monoecious? And all of you must know this. Monoecious plant की अगर बात हो रही है, so which of these will be monoecious? options है Markantia, Cycas, Pinus या फिर डेट पाम। दिस वी हैव स्टडीड बिफोर ऑल्सो, अगर आपको याद हो तो हम 11th क्लास के भी एक चैप्टर में ये बात हमने पढ़ी हुई है। एंड राइट नाउ ऑल्सो वी हैव स्टडीड दिस इन दिस चैप्टर डायरेक्टली। मोनोशियस प्लांट, विच वन ऑफ दीज इज मोनोशियस? एंड एज आई कैन सी हियर द आंसर्स दैट आई एम रिसीविंग, दे आर डेफिनेटली करेक्ट। मोनोशियस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोशियस? मोनोशियस मतलब आपका मेल और फीमेल फ्लावर्स जब सेपरेट होंगे, व्हेन देयर आर सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, that condition is what we call as monoecious condition। जब मतलब एक प्लांट के ऊपर अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स आर सेपरेट, that is monoecious condition। okay, and here if we talk about these plants जो आपके सामने दिए, अब इसमें आपको हो सकता है आपको लगेगा कि इनमें फ्लावर्स तो है ही नहीं, ये जो मार्केंशिया, साइकस, पाइनस, they won't have flowers, but you have to remember कि ये जो हमारा पाइनस का एग्जाम्पल है, मोस्टली यही आंसर दे रहे बच्चे। क्या ये सही आंसर है? इज दिस आंसर करेक्ट? पाइनस के अंदर क्या हमारे सेपरेट मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं क्या? No, but actually there are separate male and female cones. There are strobili. Pinus में separate male and female strobili होते हैं, which is true, and that's why हम इसे monoecious कह सकते हैं. And this is the reason why C has to be our correct answer. C हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। जितने भी बच्चों ने यहाँ पर C आंसर दिया है, definitely it's correct. So here we have actually done the questions from the years 2019 up to the year 2010 from the chapter reproduction in organisms. अब next class में हम मिलेंगे एक नए chapter के साथ जो कि बहुत ही ज़्यादा important है आपका 12th standard का, that is reproduction in humans. Human reproduction is very important and also the questions related to that, all the PYQs we will be solving. So see you in the next class. Till then you all have to stay tuned, you have to keep revising. आपको consistent रहना है अपनी preparation के साथ, then only you will be able to achieve whatever target you have made for yourself. So see you in the next class. Till then stay tuned and bye everyone.